you often face problems while creating games using vanilla JavaScript? If yes, then no need to worry. After completing these tutorials, you will find yourself comfortable while creating games using vanilla JavaScript. So hello everyone and once again welcome to my channel. So let's talk about rock paper and scissor game. So it's very popular game among youngsters. So this game is not only easy to play but also easy to create. So in today's video we will building this amazing game from scratch using vanilla JavaScript along with HTML and CSS. So our final game will look like this. Let's see the demo. So this is our interface, final interface. This is a play your game rock paper and scissor, and here I have put some choices like this is our rock, it's a closed fist, and this is our palm, this is our paper, and this is scissor, closed fist hand with two extended fingers, and here is our scoreboard. This is me and this is opponent, and here our opponent is computer, and it's our result basically. So still waiting for your selections. So let's select a random selection. So let's select a rock. So you lost, paper beats your rock. Means here opponents win, means computer scores gets updated once again. So again computer gets scores gets updated, means here computers win, means opponents win. Again you lost, and finally we win. That's why our score gets updated here. Let's see the scenario for the draw. Lost. Yeah, so finally, since game was draw, that's why game was drawn and play again. This is our final demo for the game. So let's start. So this is what we will creating in this video. I hope you all are excited to learn how to build these amazing games. So let's talk about the game rules. How to play this game. So this game is all about superiority. So rock is more superior than scissor. Scissor is more superior than paper, and paper is more superior than rocks. Means rock beats scissor, scissor beats paper, and paper beats rock. So how to play this game? This is a two-player game where the objective is to beat your opponent's soundball in a best of three format. So I already told you that a rock is a closed fist, paper is our palm hand, and a scissor is a closed fist with two fingers extended. हमने यहाँ पे तीन फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया index.html. सिमिलरली हमने style.css और यहाँ पे script.js फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया फॉर जावास्क्रिप्ट. और यहाँ पे हमने कुछ एसेट्स द फॉर्म ऑफ इमेज हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं लाइक पेपर png, रॉक png एंड सीजर्स png, जो कि हम अपने गेम में यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो चलिए सबसे पहले अपने HTML पे देखते हैं. सो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं रॉक पेपर सीजर गेम्स, रॉक पेपर सीजर गेम्स. एंड फाइनली अपने CSS और जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल के साथ यहाँ पे लिंक कर देते हैं. सो यहाँ पे CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करते हैं style.css. सिमिलरली अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक करते हैं script script.js. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक div बनाते हैं विथ क्लास टाइपिंग कंटेनर, और इसके अंदर हम लोग स्पैन बनाते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं फर्स्ट. क्लास इज टेक्स्ट एंड इट इज फर्स्ट टेक्स्ट. और सिमिलरली एक और स्पैन बनाते हैं विथ सेकेंड टेक्स्ट. हमने दोनों को सेम क्लास तो दिया था क्लास टेक्स्ट, बट हमने फर्दर एक्सटेंडेड क्लास हमने यहाँ पे दिया है फर्स्ट टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट, बिकॉज हमें यहाँ पे एक टाइपिंग एनिमेशन टेक्स्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. सो हम लोग यहाँ पे टाइपिंग एनिमेशन टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया विथ क्लास टाइपिंग कंटेनर. और फिर हमने यहाँ पे स्पैन के अंदर, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा सेम लाइन पे ही रहे, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्ले योर गेम को हमने इस वाले में, और यहाँ पे रॉक. और फिर हम इसे फर्दर इन जावास्क्रिप्ट हम लोग इसे चेंज करने वाले हैं. डायनेमिकली हम लोग इसे जावास्क्रिप्ट में चेंज करने वाले हैं. और जो हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट टेक्स्ट के साथ जो हमने असाइन किया है, ये क्लास जो हमारा, ये हमारा स्टैटिक मींस कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे दोनों को डिफरेंट क्लास फर्दर हमने असाइन किया, बिकॉज हमें इसे फिर जावास्क्रिप्ट में फर्दर हमें इसे आइडेंटिफाई करना था. सो ये हमारा एक टाइपिंग एनिमेशन टेक्स्ट बन गया है. तो अब हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं अपने इंटरफेस पे. सो यहाँ पे क्लास दे देंगे ग्रेडियंट कंटेनर, और फिर इसके अंदर हम लोग वापस एक डिव बनाएंगे जिसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देंगे. स्पेल चेक इज इक्वल टू फॉल्स एंड कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू. अब इसका क्या मतलब हुआ, और फिर इसे क्लास भी असाइन कर देते हैं. क्लास इज ग्रेडियंट टेक्स्ट.
सो यहाँ पे अभी के लिए लिख देते हैं सेलेक्ट योर चॉइस और ऑप्शन वॉट एवर। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई किया लाइक अ स्पेल चेक इज इक्वल टू फॉल्स, मीन्स दिस डिसेबल्स ब्राउजर बिल्ट इन स्पेल चेक प्रॉपर्टी। मतलब क्या होता है कि ब्राउजर हमारा बाय डिफॉल्ट वो स्पेल चेक करता है, जिस वजह से वो रेड अंडरलाइन वो शो करने लगता है। बट हमने यहाँ पे स्पेल चेक इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, जिस वजह से हमारा वो अंडरलाइन रेड अंडरलाइन और वो हमारा स्पेल चेक का कोई इशू यहाँ पे नहीं रहेगा। वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। कंटेंट एडिटेबल करने का मतलब, ट्रू करने का ये मतलब हो गया कि वेबसाइट पे जहाँ पे हमने ये सिलेक्ट योर चॉइस लिखा है, आप उसे एडिट करके एज पर योर चॉइस आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे हमने कुछ दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया था। अब हम लोग अपने चॉइस के लिए यहाँ पे लिखते हैं। सो सबसे पहले बनाते हैं चॉइसेस और इसके अंदर फर्दर हम लोग 3 चॉइस क्लास के साथ डिव बनाएंगे। सो ये हो गया एंड ईच डिव कंटेन्स एन इमेज टैग, जिसमें कि हमारा इमेज के अंदर हो जाएगा रॉक, यहाँ पे दे देते हैं रॉक, एंड यहाँ पे हो जाएगा पेपर एंड ये हो जाएगा अपना सीजर डॉट png एंड इसे दे देते हैं सीजर। सो अब हम यहाँ पे अपने हर एक डिव को एक इंडिविजुअल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आईडी इज इक्वल टू हो गया रॉक, यहाँ पे हो गया आईडी इज इक्वल टू पेपर एंड सिमिलरली यहाँ पे हो गया आईडी इज इक्वल टू सीजर। So the reason behind assigning them individual ID because we have to identify them in JavaScript as well. That's why उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ID प्रोवाइड कर दिया है each div को। अब हम लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड के लिए एक div बनाएंगे। या सो उसके लिए सबसे पहले एक स्कोर बोर्ड करके एक div बनाते हैं विथ क्लास स्कोर बोर्ड, और फिर एक और div बनाते हैं स्कोर। सो ये हमारा हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे पैराग्राफ 0 पैराग्राफ मी, सिमिलरली इसके लिए भी पैराग्राफ 0 एंड पैराग्राफ अपोनेंट एंड हेयर अपोनेंट इज कंप्यूटर। अब ये जो हमारा पैराग्राफ के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है मी एंड ओपोनेंट, ये तो हमारा थ्रू आउट सेम रहने वाला है। बट ये जो हमारा स्कोर है 0 जो अभी के लिए 0 है हमारा, इसे हमें अपडेट भी करना है इन जावास्क्रिप्ट। सो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आईडी इज यूजर स्कोर एंड आईडी इज कंप्यूटर स्कोर। सो ये हमारा स्कोर के लिए हो गया। एंड लास्टली हम लोग अपने गेम स्टेटस के लिए एक मैसेज भी वहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो एक और कंटेनर बनाएंगे गेम मैसेज करके। सो इसके लिए एक डिव बनाते हैं विथ क्लास गेम कंटेनर और फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं विथ आईडी हम लोग इसलिए यहाँ पे असाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में ये जो हमारा मैसेज है इसे हमें फिर अपडेट भी करना है। सो अभी के लिए हम लोग इसे आईडी दे देते हैं मैसेज और अभी के लिए लिख देते हैं वेटिंग फॉर योर सेलेक्शंस, वेटिंग फॉर योर चॉइस। सो ये हमारा गेम कंटेनर हो गया जो कि डिस्प्ले करेगा हमारे गेम के स्टेटस को। हमारा HTML कुछ इस तरह से दिखने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले हमने एक डिव क्रिएट किया है जिस विथ क्लास टाइपिंग कंटेनर, और फिर उसके अंदर हमने 2 स्पैन क्रिएट किया है विथ क्लास टेक्स्ट, और फिर फर्दर हमने एक्सटेंडेड क्लास यूज किया है फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम इन जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअली। फिर हमने यहाँ पे एक ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हमने एक डिव क्रिएट किया विथ क्लास ग्रेडियंट कंटेनर, और फिर फर्दर हमने इनसाइड एक डिव बनाया है जिसमें कुछ हमने प्रॉपर्टी भी असाइन किया है। स्पेल चेक इज इक्वल टू फॉल्स, reason already I told you that browser will not recognize your spelling, and content editable true means you can edit this text in your website as well. So हमने इसे भी एक क्लास ग्रेडियंट टेक्स्ट हमने असाइन कर दिया है, और अभी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है सेलेक्ट योर चॉइस। फिर फर्दर हमने अपने चॉइस के लिए हमने एक डिव क्रिएट किया विथ क्लास चॉइसेस, एंड उसके अंदर हमने 3 डिव हमने क्रिएट किया है फॉर आवर चॉइस। सो उसको हर एक डिव को हमने फिर
फर्दर एक आईडी प्रोवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम इंडिविजुअली इन जावास्क्रिप्ट एंड ईच div विथ क्लास चॉइस कंटेन्स एन इमेज टैग। सो हमने यहाँ पे इमेज भी ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हमने एक स्कोर के लिए हमने div बनाया विथ क्लास स्कोर बोर्ड, और फिर उसके इनसाइड हमने दो क्लास बनाया विथ स्कोर, एंड उस फिर हमने दो पैराग्राफ हमने यूज़ किया है, जिसमें कि हमारा एक हो गया जो हमारा स्कोर होने वाला यूजर स्कोर एंड कंप्यूटर स्कोर, और एंड द रीजन बिहाइंड असाइनिंग देम इंडिविजुअल आईडी इज दैट जो कि हमारा स्कोर है वो इन फ्यूचर अपडेट होगा। सो दैट्स वाई हमने एक आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, बट हमारा मी एंड अपोनेंट जो कि हमारा टेक्स्ट है वो एज इट इज रहने वाला है। दैट्स वाई नो नीड टू असाइन एनी क्लास एंड आईडी। एंड लास्टली हमने गेम मैसेज जो कि हमारा डिस्प्ले होगा एज पर यूजर्स इनपुट। सो इससे हमें विथ क्लास गेम कंटेनर हमने यहाँ पर टिप बनाया, और फिर उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया, और हमने आईडी असाइन कर दिया मैसेज, जो कि अभी के लिए हमारा वेटिंग फॉर योर चॉइस है, बट ये हमारा अपडेट होगा एज पर यूजर सेलेक्शंस। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आईडी मैसेज रखा है, क्योंकि हमें इससे आइडेंटिफाई करना है इन जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपको HTML बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए CSS की ओर बढ़ते हैं। या सो अब हम लोग यहाँ पे अपना CSS लिखने वाले हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करके हम लोग डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग को यहाँ पे 0 कर देते हैं। मार्जिन इज 0 एंड पैडिंग इज ऑल्सो 0, एंड बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, बिकॉज दिस इंक्लूड्स पैडिंग एंड मार्जिन विद इन एलिमेंट्स। द रीजन बिहाइंड doing box sizing is equal to border box is that this includes padding and border in elements total width and height। and यहाँ पे कुछ font family भी दे देते हैं। so font family is कोई भी रैंडम हम लोग यहाँ पे अभी के लिए चूज कर लेते हैं, लाइक ये हमारा होने वाला है font family। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी के लिए कुछ स्टाइलिंग करने वाले हैं। so body is minimum height is 100% viewport height। this ensures that our body at least takes 100% viewport height। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है कॉलम। डिस्प्ले हमने कर दिया है फ्लेक्स। सो डिस्प्ले फ्लेक्स मीन्स इनेबल्स हो गया हमारा फ्लेक्स बॉक्स में जो हमारा जितनी भी प्रॉपर्टी है लेआउट जो हमारा है, तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने कॉलम कर दिया, मीन्स हम लोग अरेंजेस चाइल्ड एलिमेंट्स इन कॉलम, मतलब हम लोग अपने चाइल्ड एलिमेंट को कॉलम में अरेंज करने वाले हैं। फिर हम लोग अलाइन आइटम्स को कर देते हैं सेंटर। अलाइन आइटम्स इज सेंटर। हम लोग जस्टिफाई एलिमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, मीन्स हमारा अलाइंस आइटम्स टू द टॉप, मतलब वो टॉप से अलाइंस होकर आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड। सो हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है हैशटैग 010718, हैशटैग 010718। सो ये हमारा कुछ बैकग्राउंड होने वाला है, और हम लोग पैडिंग टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल्स इन ऑर्डर टू ऐड स्पेस एट द टॉप। सो पैडिंग टॉप इज 30 पिक्सल। सो हम लोग अपने टाइपिंग एनिमेशन कंटेनर के लिए यहाँ पे हम लोग स्टाइल यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले उसके लिए हम लोग टाइपिंग कंटेनर जो हमारा क्लास है टाइपिंग कंटेनर, उस पर हम लोग कुछ स्टाइल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। गैप दे देते हैं कुछ, सो गैप दे देते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद एक फॉन्ट साइज दे देते हैं और फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। सो फॉन्ट साइज इज कर देते हैं 80 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट इज कर देते हैं 800। वैसे तो फॉन्ट साइज और ये जितने भी मैं यूनिट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो हमें इन द फॉर्म ऑफ रेम करना चाहिए था, बट या कुछ वैसा कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो हम लोग अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। सो टाइपिंग कंटेनर के बाद फर्दर जो हमारा टेक्स्ट है उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं स्टाइल। सो उस पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं कुछ कलर असाइन कर देते हैं। सबसे पहले कलर। सो कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है हैशटैग 4070F4 4070 एंड F4। सो ये हमारा कलर होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक बेसिकली इंश्योर कर रहा है इनलाइन बिहेवियर while allowing with height adjustments। सो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसका बिहेवियर जो वो इनलाइन ही हो। वाइट स्पेस को नो रैप कर देते हैं। सो इट बेसिकली प्रिवेंट टेक्स्ट फ्रॉम रैपिंग। सो ये हमारा हो गया टेक्स्ट के लिए। अब लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द टाइपिंग टेक्स्ट को के लिए हम लोग स्टाइल करते हैं। सो उसके लिए क्या हो जाएगा,
उसके लिए बेसिकली हम लोग टाइपिंग कंटेनर में फर्स्ट टेक्स्ट क्लास का हम लोग अप्लाई करेंगे। सो टाइपिंग कंटेनर के लिए फर्स्ट टेक्स्ट के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कलर इज #FFF। सो अब हम लोग यहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट में अपना जो सेकंड टेक्स्ट है उस पर हम लोग कुछ सूडो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। सो टेक्स्ट के अंदर जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उस पर हम लोग सूडो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग वहां पे कंटेंट को कर देंगे ब्लिंकिंग कर्सर, और फिर हमारा जो एनिमेशन उसको कर देंगे ब्लिंक 0.6 सेकेंड इन्फिनाइट अल्टरनेट। अब हमने ये जो एनिमेशन नेम दिया है ये हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा। सो की फ्रेम यूज करके हमें ब्लिंकिंग कर्सर के लिए हमें एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले की फ्रेम, हमारा एनिमेशन का नाम है जो वो है ब्लिंक, और इसके लिए हम लोग 0% पे ओपेसिटी 1 कर देंगे जिससे कि कर्सर हमारा विजिबल हो, एंड फिर 100% पे ओपेसिटी को 0 कर देंगे जिससे कि हमारा कर्सर हिडन हो जाए। सो 0% पे ओपेसिटी को कर देंगे 0, 0% पे हम लोग ओपेसिटी को कर देंगे 1, एंड 100% पे ओपेसिटी को हम लोग कर देंगे 0। 100% पे हमारा ओपेसिटी हो जाएगा, ओपेसिटी इज 0। सो इससे हमारा कर्सर विजिबल और हिडन हो जाएगा। सो हमने अपना एनिमेशन यहाँ पे लिख लिया है, और जो हमारे जो कंटेंट है ये हमारा ब्लिंकिंग कर्सर के लिए हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने चॉइस कंटेनर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले चॉइसेस कंटेनर के लिए यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। सो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं जिससे कि हमारे जो 3 चॉइस है ये हमारा आउटर डिव है। सो आउटर डिव पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे जिस वजह से हमारा जो इनर डिव में जो हमारा 3 चॉइस डिव है विथ क्लास चॉइस वो हमारा एक रो में आ जाएगा। सो उसके लिए हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जिससे कि हमारा ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, एंड अलाइन आइटम्स भी कर देते हैं सेंटर जिससे वर्टिकली भी हमारा सेंटर में आ जाएगा, एंड मार्जिन टॉप को दे देते हैं 1 रेम, मार्जिन टॉप 1 रेम, और फिर हम लोग गैप भी दे देते हैं, 5 रेम। सो ये हमारा हो गया। अब हम लोग इंडिविजुअल जो हमारा डिव था विद क्लास चॉइस उस पर हम लोग स्टाइलिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये था हमारा चॉइस। सो इस पर हम लोग कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हाइट और विथ सेट कर देते हैं। सो हाइट इज 120 पिक्सल्स, विथ भी कर देते हैं 120 पिक्सल्स। अब सेम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है कि हमें बॉर्डर रेडियस यूज करना है 50% जिससे कि ये कंप्लीट सर्कल बन जाए। सो जिस वजह से अब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर देते हैं क्योंकि ये हमारा डिव है, और फिर हम लोग इमेज पे भी कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। सो ये अगर हमारा कंप्लीट सर्कल रहेगा और हमें इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है अभी, सो ये कुछ इसका जो एस्पेक्ट रेशियो वो ना गड़बड़ हो जाए, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज कर रहे हैं अपने डिव पे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये सब कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड हम लोग कुछ बैकग्राउंड भी दे देते हैं इसको। सो बैकग्राउंड इज RGB के अंदर 255 और कुछ ओपेसिटी भी दे देते हैं। सो RGB हो गया हमारा 255 एंड ओपेसिटी कर देते हैं 0.5। सो ये हमारा हो गया, या फिर 0.15 कर देते हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर इज 4 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, एक बॉर्डर भी दे दिया आपने। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी यूज करने वाले हैं। सो ट्रांजिशन इज ऑल 0.3 सेकेंड इजी नॉट। हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, स्मूथ हवर ट्रांजिशन, और फिर हम लोग कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर जाके, ताकि वो हमारे चॉइस पे जाए। हवर करने पे हमारा कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाए। सो हमने कर्सर पॉइंटर कर दिया। पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन रिलेटिव करने का मतलब है कि इट्स अलाउज एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ऑफ चिल्ड्रन, एंड ओवरफ्लो को हम लोग हिडन कर देते हैं जिससे कि इट प्रिवेंट्स ओवरफ्लो ऑफ द कंटेंट। सो ओवरफ्लो को हम लोग कर देते हैं, ओवरफ्लो इज हिडन, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ द कंटेंट। हम लोग एक बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। सो बॉक्स शैडो हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल,
एंड उसके बाद हम लोग RGB यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे कर देते हैं 255 255 255 एंड 0.4। सो इट्स एड्स सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट। सो अब हम लोग हवर इफेक्ट अप्लाई करते हैं अपने चॉइसेस वाले डिप पे, जो हमारा ये 3 चॉइस डिप है। इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं अपना हवर इफेक्ट, ताकि हमारे चॉइस पे सेलेक्ट करने पे जो हमारा यूजर हमारे चॉइस पे हवर करे तो वहाँ पे कुछ हमें चेंजेस परफॉर्म करवाने हैं। सो चॉइस पे हवर करने पे हम लोग कुछ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं 081B31। सो हैशटैग 081B31। सो ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि हवर करने पे थोड़ा वो हमारा चॉइस वो इनलार्ज हो जाए स्लाइटली। सो हम लोग ट्रांसफॉर्म को कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 कर देते हैं। सो हमारा थोड़ा यहाँ पे वो स्लाइटली इनलार्ज हो जाएगा हवर करने पे। हम लोग बॉर्डर कलर भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो बॉर्डर कलर इज हैशटैग FFCCO। सो ये हमारा बॉर्डर कलर हो गया। और यहाँ पे एक बॉक्स शैडो भी दे देते हैं, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लो इफेक्ट आ जाए। बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो में हम लोग 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 25 पिक्सल, और फिर हम लोग एक RGB यहाँ पे ऐड करेंगे। सो RGB में हम लोग कर देते हैं 255, 204, 0 एंड फिर एक 0.8 का ओपेसिटी दे देते हैं, 0.8। सो ये हमारा हो गया चॉइस हवर। सो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग अपने इमेज पे भी करना चाहते हैं, ताकि अभी तक हमारा जो इमेज है वो हमारा नाइस कुछ सर्कुलर शेप में हुआ है, जिस वजह से हमारा पूरा आस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे गड़बड़ है। इसे अभी हमें ठीक करना है। ये हमारा इफेक्ट तो आ रहा है हवर करने पे, बट ये हमारा इमेज का आस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे सही नहीं है। सो क्योंकि हमने आउटर कंटेनर के लिए, हमने डिव के लिए तो सेट कर दिया स्टाइलिंग, बट हमने अपनी इमेज के लिए नहीं किया है। सो वो अभी यहाँ पे हमें करना है। सो उसके लिए हम लोग जो हमारा कंटेनर है और फिर हमारा जो इमेज है, इस इमेज के लिए हमें करना है। सो सबसे पहले अपनी इमेज के लिए विड्थ और हाइट को 100% कर देते हैं, जिससे कि वो कम्प्लीटली फिट हो जाए। विड्थ और हाइट भी कर देते हैं 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देंगे। इट बेसिकली इंश्योर्स इमेज कवर्स द एंटायर स्पेस। सो ऑब्जेक्ट कवर को कर देते हैं, ऑब्जेक्ट फिट को कर देते हैं कवर। सो ये हो गया हमारा। ये पेपर वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। सो हमने यहाँ पे पेपर .png। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट फिट इज कवर हमने अपने यहाँ पे कर दिया। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 50% कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस इज 50%। ऑल्दो वो हो गया था बिकॉज ऑफ द ऑटर डिव, बट इससे थोड़ा हमारा वो एनिमेशन प्रॉपर दिखेगा। सो ये अभी हमारा इस टाइप से कुछ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग एक ट्रांजिशन भी दे देते हैं, जिससे कि एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखे हमें, स्मूथ एनिमेशन दिखे। सो ट्रांजिशन इज सेम एज जो हमने डिव पे जो हमने अप्लाई किया था। ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड इज इन आउट। ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड इज इन आउट। सो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और फर्दर हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये अभी हमारा हवर करने पे सिंपली ये ग्लो इफेक्ट हमें दे रहा है, और हमारा जो बॉर्डर है वो विजिबल हो रहा है। बट हम लोग चाहते हैं ये थोड़ा रोटेट हो, या स्केल भी हो रहा है, बट हमें चाहते हैं ये कुछ एंगल से हमारा रोटेट भी होना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो चॉइस को हवर करने पे हम लोग अपनी इमेज पे अप्लाई करने वाले हैं कुछ। सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम लोग रोटेट करेंगे इसे। ट्रांसफॉर्म रोटेट एंड रोटेट कर देते हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री हवर करने पे, और स्केल कर देते हैं 1.1। अब हम लोग यदि हवर करेंगे अपने चॉइस पे, सो ग्लो इफेक्ट के साथ साथ वो हमारा रोटेट भी होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो हमने यहाँ तक अचीव कर लिया है। हम लोग अभी हमारा वो टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट और वो हमारा ग्रेडियंट टेक्स्ट इफेक्ट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। उसके लिए अभी हमें स्टाइलिंग अभी हमें लिखना पड़ेगा। सो आगे हम लोग देखते हैं। सो आगे अपने स्कोर बोर्ड के लिए यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सो डॉट स्कोर बोर्ड। सो इसके लिए भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप इज 5 रेम, और फिर यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप इज 2 रेम। सो ये हमारा हो गया स्कोर बोर्ड के लिए। हम लोग अपने इंडिविजुअल स्कोर बॉक्स के लिए भी स्टाइलिंग करते हैं। सो इंडिविजुअल स्कोर बॉक्स के लिए यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे भी कर देते हैं
डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, कॉलम, और फिर अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लोग यहाँ पे कुछ विथ और हाइट भी चाहिए, यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो विथ हो गया 220 पिक्सल्स, हाइट हो गया 120 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस इज 10 पिक्सल्स। सो ये हमारा हो गया। एक बैकग्राउंड इमेज भी दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज इज लीनियर ग्रेडियंट। सो यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो कि मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। सो ये वैल्यू हमारा जाएगा। सो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड इमेज। सो ये हमारा स्कोर कार्ड दिख रहा है, कलर भी कर देते हैं। सो कलर हमारा हो गया F5 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 F5। सो यहाँ पे हैशटैग, सो ये हमारा हो गया कलर, और हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल, पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव। सो हमारा स्कोर के लिए कुछ स्टाइलिंग हो गया, इंडिविजुअल स्कोर के लिए। सो अब हम लोग यहाँ पे अपने स्कोर कार्ड पे हवर इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। सो डॉट स्कोर, यदि हवर होने पे, स्कोर पे हवर होने पे हम लोग एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वो कंटिन्यूअस ह्यू रोटेशन वो यहाँ पे अप्लाई होगा। सो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन लिखते हैं, एनिमेशन हो जाएगा हमारा रोटेट, रोटेट 0.4 सेकेंड, लीनियर इनफिनाइट। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस ह्यू रोटेशन यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पे हमारा एनिमेशन नेम रोटेट है, उसके लिए हमें अभी प्रॉपर्टी अभी हमें लिखना पड़ेगा। सो की फ्रेम रोटेट, की फ्रेम्स रोटेट, अभी एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ होगा जब तक कि हम लोग इस पर कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। सो रोटेट करने पे क्या होगा, 100% पे, 100% पे फिल्टर को कर देंगे, 100% पे फिल्टर को कर देंगे हुई रोटेट -360 डिग्री, -360 डिग्री। सो ये हमारा करेगा रोटेट्स कलर्स। सो ये हमारा कुछ अप्लाई होगा यहाँ पे। सो ये हमारा अप्लाई हो गया। फर्दर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो हमारा स्कोर नंबर जो हमने दिया है वो जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी वो स्मॉल इन साइज दिख रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यूजर स्कोर और फिर हमारा कंप्यूटर स्कोर, यहाँ पे इस पर हम लोग कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा हम लोग लार्ज कर देंगे, फॉन्ट वेट को भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे और एक मार्जिन भी दे देंगे। सो फॉन्ट साइज को कर देते हैं 4 रेम, एंड फॉन्ट वेट को कर देते हैं, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, एंड मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप, एंड मार्जिन टॉप इज, मार्जिन टॉप की जगह हम लोग मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम इज 5 पिक्सल। सो ये हमारा हो गया। और जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया उस हिसाब का यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमारा ये जो हमारा टेक्स्ट है। सो उसके लिए आप यहाँ पे फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। सो जैसा कि फॉन्ट फैमिली, आप कुछ भी ये अप्लाई करके देख लो, ये बेटर लग रहा है उससे। सो ये हमारा हो गया। फर्दर हम लोग देखते हैं आगे। सो हम लोग क्या करेंगे, स्कोर के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उस पर हम लोग कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। सो उसको क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को कर देंगे, फॉन्ट साइज को कर देंगे 1.5 रेम, और फिर मार्जिन को कर देंगे 0। सो ये हमारा हो गया। अब हम लोग अपने मैसेज कंटेनर के लिए भी कुछ करेंगे। सो मैसेज कंटेनर, सो मैसेज कंटेनर के लिए कुछ अब स्टाइलिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए मार्जिन टॉप, टॉप इज 19 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं 1 रेम, एंड बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस इज 20 पिक्सल। सो ये हो गया। अब हम लोग अपने मैसेज के लिए कुछ स्टाइलिंग करेंगे। सो मैसेज जो लास्टली हमारा जो एक डिस्प्ले होगा हमारा रिजल्ट एज पर इनपुट, सो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो मैसेज के लिए, सो यहाँ पे फॉन्ट साइज को कर देंगे 2 रेम, और फिर फॉन्ट वेट को कर देंगे, फॉन्ट वेट इज 800, एंड हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पे चेंज कर देंगे जिससे कि सारे
टेक्स्ट वो कैपिटल में आएगा हमारा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर देते हैं कैपिटलाइज, इससे कि वो हमारा कैप्स लॉक के साथ वो आएगा। एंड बैकग्राउंड भी यहाँ पे कुछ कर देते हैं। सो बैकग्राउंड इज लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट और कुछ वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। सो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड, के लिए आप देख पा रहे हो वो दिख रहा है। सो बैकग्राउंड साइज भी कर देते हैं। बैकग्राउंड साइज इज 400%। या सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ दो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। या सो ये हमने वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट और वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट, ये सीएसएस में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिस वजह से वो हमने फिल कलर को हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया। सो अब यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करते हैं। सो एनिमेशन इज, एनिमेशन नेम यहाँ पे दे देते हैं एनिमेट ग्रेडियंट्स, एनिमेट ग्रेडियंट्स, एनिमेट ग्रेडियंट्स एंड 10 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। अभी हमारा अप्लाई नहीं हुआ, इसके लिए हमें की फ्रेम यूज करके हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो वो अभी करते हैं। उससे पहले हम लोग एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इज 1 रेम, और फिर बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 1 रेम, और फिर एक बॉक्स शैडो भी दे देते हैं और बॉर्डर भी दे देते हैं। सो बॉर्डर इज हो जाएगा हमारा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक हमारा हो गया बॉर्डर। और फिर इसके लिए हम लोग एक बॉक्स शैडो भी देने वाले हैं। सो बॉक्स शैडो इज हमारा 0 पिक्सल, 7 पिक्सल, 20 पिक्सल, और फिर एक RGB भी दे देते हैं। सो RGB हमारा हो गया, RGB हमारा हो गया 255, 204, 0 और फिर 0 और फिर ये हमारा हो गया 0.5, या फिर आप 0.8 कर दो इसे। सो ये हमारा बॉक्स शैडो भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो अब हम लोग की फ्रेम यूज करके अपना एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो @ की फ्रेम्स एनिमेट, एनिमेट ग्रेडियंट्स, एनिमेट ग्रेडियंट्स, और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन को कर देंगे 400%। सो टू बैकग्राउंड पोजीशन 400%। सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो अब हम लोग फर्दर यहाँ पे स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। तो अपने ग्रेडियंट टेक्स्ट के लिए और फिर हमारा जो टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट है उसके लिए हम लोग स्टाइलिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। या सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। सो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट टेक्स्ट, ग्रेडियंट टेक्स्ट, सो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज को कर देंगे 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट को भी कर देंगे, फॉन्ट वेट इज 800, और फिर हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अपर केस कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस, और फिर एक बैकग्राउंड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सो बैकग्राउंड इज लीनियर ग्रेडियंट भी कर लेते हैं। so ये हमारा अभी यहाँ पे विजिबल है। सेलेक्ट योर चॉइस, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को 400% कर देते हैं। बैकग्राउंड साइज इज 400%, और फिर वापस से वो दो जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे कि वो हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है, और हम लोग यहाँ पे वापस से वो एनिमेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। सो एनिमेशन इज, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो सेम एनिमेशन जो हमने ऊपर यूज़ किया है, ये एनिमेशन हम लोग यहाँ पे वापस से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एनिमेशन इज, ये भी कॉपी करके वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये एनिमेट ग्रेडियंट्स था, ये था एनिमेट ग्रेडियंट। सो इसे भी ये कर देते हैं। सो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा अप्लाई हो चुका है, हमारा फाइनल इंटरफेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो फाइनली आई एम डन विथ HTML एंड CSS। सो अब हमारा बचा है जावास्क्रिप्ट। सो वो हमारा मेन लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। सो ये हमारा इंटरफेस तो रेडी है, बट ये अभी हमारा स्कोर वगैरह अपडेट नहीं होगा, और ये जो हमारा एक टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट है ये भी अभी हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक तो कर रहा है, बट वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है रॉक से पेपर और सीजर, और फिर हमारा ये अभी स्कोर्स भी अपडेट नहीं हो रहा है, और ये हमारा मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हो रहा है। सो ये हम लोग करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो चलिए जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हमने स्टार्टिंग में जो टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट में जो हमने फर्दर एक्सटेंडेड क्लास जो हमने यहाँ पे असाइन किया था सेकंड टेक्स्ट,
इससे सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे। सो कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। यूजिंग क्यूरी सिलेक्टर हम लोग वहाँ पे हमारा जो क्लास था डॉट सेकेंड टेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है जावास्क्रिप्ट में। कॉन्स्ट सेकेंड टेक्स्ट से हमने एक्सेस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं टू चेंज द टेक्स्ट इन अ लूप। मीन्स हम लोग यहाँ पे टाइपिंग एनिमेशन टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं टेक्स्ट लोड। सो टेक्स्ट लोड करके हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, इसे कैमल केस में यूज करते हैं। सो ये हमारा हो गया। हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं। यूजिंग एरो फंक्शन हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। सो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे सेट टाइम आउट, और फिर हम लोग यहाँ पे अगेन यूजिंग एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट को टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रॉक। तो ये क्या करेगा, इट चेंजेस टेक्स्ट टू रॉक इमीडिएटली, और फिर हमें यहाँ पे डिले भी देना पड़ेगा। सो डिले हमारा जो है वो यहाँ पे 0 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। सो सिमिलरली हम लोग सेट टाइम आउट पेपर और सीजर के लिए भी करेंगे। सो सेट टाइम आउट और फिर अगेन यहाँ पे यूजिंग एरो फंक्शन, ये कॉम्पैक्ट वे है फंक्शन लिखने का, एरो फंक्शन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इमीडिएटली हमें चेंज करना है रॉक टू पेपर। सो इसे कर देंगे पेपर, और फिर यहाँ पे डिले दे देंगे। सो यहाँ पे हम लोग, ये मिली सेकेंड में होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1000 दे रहे हैं। सो अगेन इसे कॉपी कर लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे सीजर के लिए और टाइम डिले यहाँ पे चेंज करके कर देते हैं 2 सेकेंड। सो यहाँ पे पेपर की जगह हम लोग सीजर कर देते हैं, SCISS। सो ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग कॉल करेंगे अपने टेक्स्ट लोड फंक्शन को टू स्टार्ट द टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं टेक्स्ट लोड को, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार तो हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, बट कंप्लीट होने के बाद हम लोग वापस चाहते हुए एनिमेशन हमारा एक इंटरवल के बाद वो वापस से कंटिन्यू हो जाए, उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे सेट इंटरवल। सो सेट इंटरवल के अंदर हम लोग अपने टेक्स्ट लोड फंक्शन को पास कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 2 आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, और एक हम लोग वो इंटरवल डालेंगे, इतने इंटरवल के बाद हमारा वो वापस से ये एनिमेशन वर्क करे। सो यहाँ पे हमने डाल दिया। यदि मैं अभी के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा है, हमारा रॉक पेपर सीजर। बट ये सीजर के बाद वापस से एनिमेशन ये वर्क नहीं कर रहा है। बट यदि मैं इस कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये रॉक पेपर सीजर, फिर ये वापस से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये फाइनली हमारा ये टाइपिंग एनिमेशन के लिए हमने अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यहाँ पे हमने लिख दिया है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया दैट अपडेट्स द टेक्स्ट कंटेंट विथ अ डिले। सो हमने यूजिंग एरो फंक्शन, एरो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट-हैंड वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज टेक्स्ट लोड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द टेक्स्ट इनसाइड, जो हमारा वो एलिमेंट है एट डिफरेंट इंटरवल। उसके बाद हमने क्या किया, इनसाइड टेक्स्ट लोड फंक्शन हमने वो क्या किया, टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट से हमने अपडेट कर दिया इमीडिएटली टू रॉक एंड सिमिलरली फॉर पेपर एंड सीजर। उसके बाद हमारा जो सेट टाइम आउट, एक हमारा ये मेथड है, बिल्ट इन मेथड है इन जावास्क्रिप्ट दैट एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन आफ्टर अ स्पेसिफाइड डिले, जो कि हमने वहाँ पे डिले हमने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सेट टाइम आउट है वो इमीडिएटली रन होगा फॉर 0 मिलीसेकेंड्स एंड चेंजिंग द टेक्स्ट कंटेंट टू रॉक, एंड सिमिलरली फॉर 1 सेकेंड में वो हमारा पेपर पे हो जाएगा, फिर वो सीजर हो जाएगा। सो ये हमारा पूरा लॉजिक था। सो हमारा, मैं वापस से आपको जो भी हमने मेथड यूज किया उसके बारे में बता देता हूँ। सेट टाइम आउट एक्सिक्यूट्स अ फंक्शन वंस आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम डिले, सेट इंटरवल्स रिपीट्स अ फंक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट चेंजेस द टेक्स्ट इनसाइड एंड HTML एलिमेंट्स। सो ये हमारा पूरा, ये हमारा लॉजिक था टाइपिंग एनिमेशन का। सो दिस कोड क्रिएट्स अ टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट वेयर द टेक्स्ट अपडेट्स डायनेमिकली। So set timeouts ensures a smooth transition between rock paper and scissor, and set interval keep the animation repeating every 3 seconds. So ये difference है हमारा set timeout में और हमारा set interval में. And text content is a property in HTML that gates or sets the text inside that elements. So gates or sets all the text inside elements, even hidden elements. तो अब हम लोग अपने गेम के लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा तरीके से हमारा ये टाइपिंग एनिमेशन का हो गया।
सबसे पहले हम लोग लेट यूजर स्कोर इज इक्वल टू 0 एंड लेट कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू 0। सो हमने इनिशियलाइज कर दिया यूजर एंड कंप्यूटर स्कोर को 0, चूंकि हमारा फिर बाद में वो अपडेट होगा एज पर यूजर इनपुट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट जो भी हमारा जो हमने असाइन किया था आईडी, उस आईडी की हेल्प से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारा यूज का है उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। पहले हम लोग एक बनाएंगे कॉन्स्ट चॉइसेस और हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल की हेल्प से जो हमारा वो चॉइस था, इससे हमारा क्या होगा कि हमारा वो जो चॉइस है उसमें हमारे 3 चॉइस है, जो कि हमारा सिलेक्टर ऑल की हेल्प से वो हमारे सारे चॉइस यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द क्लास चॉइस रॉक पेपर एंड सीजर हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। हम लोग अपने यहाँ पे मैसेज को भी एक्सेस कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो हमने आईडी दिया था, सो आईडी इज मैसेज से हमने यहाँ पे मैसेज को भी एक्सेस कर लिया है इन जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने यूजर स्कोर एंड कंप्यूटर स्कोर को भी यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। सो उसके लिए भी हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट यूजर स्कोर और इसे दे देते हैं पैरा, कि हम वो हमारे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर है। सो इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और वो हमारा है आईडी जो हमारा है वो है यूजर स्कोर। सिमिलरली इसे कॉपी करके यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंप्यूटर स्कोर और ये भी हमारा हो जाएगा कंप्यूटर स्कोर। सो यहाँ तक हमने एक्सेस कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इवेंट लिस्टनर ऐड करने वाले हैं फॉर ईच चॉइस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो अपना यहाँ पे एक्सेस किया था चॉइसेस डॉट फॉर ईच, तो फॉर ईच मेथड जो है हमारा ये बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या करेगा, हम हमारा जो ये चॉइसेस है इस चॉइसेस में से वो हर एक चॉइस को यहाँ पे निकाल कर हमें देगा। तो हमारा जो चॉइस है उस चॉइस को वो यहाँ से वो निकाल कर देगा। हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज किया है। सो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं चॉइस डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर्स और हम जो यहाँ पे इवेंट अप्लाई करने वाले वो है हमारा क्लिक इवेंट। क्लिक करने पे ये हमारा ट्रिगर होगा। सो क्लिक इवेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और फिर यहाँ पे हमारा होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्लिक एलिमेंट के लिए हम लोग उसके आईडी को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट यूजर चॉइस। सो हर एक जो भी वो क्लिक करेगा उस चॉइस के लिए हम उसके आईडी को एक तरीके से रिट्रीव कर रहे हैं। सो कॉन्स्ट यूजर चॉइस इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे चॉइस डॉट समथिंग कॉल्ड गेट एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, गेट एट्रीब्यूट, और हम लोग यहाँ पे आईडी रिट्रीव कर रहे हैं। हर एक चॉइस के लिए जो भी चॉइस हमारा क्लिक होगा उसमें वो आईडी रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं कि यूजर कौन सा क्लिक कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग यूजर चॉइस। और फिर यहाँ से अभी के लिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे रॉक पे क्लिक किया, रॉक। सो अब यहाँ पे कंसोल पे खोलते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे रॉक पे क्लिक किया, आईडी हमारा रॉक था, यहाँ पे रॉक प्रिंट हो रहा है। जैसे कि हमने पेपर पे क्लिक किया, आईडी हमारा पेपर था, HTML में हमने असाइन किया था, सो हमारा पेपर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे सीजर प्रिंट हो रहा है, वापस से सीजर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। एक और चीज मैं आप दिखाना चाहूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज किया है और हमने कंटेंट एडिटेबल को हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया था, जिस तरह से आप यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हो। सेलेक्ट योर ऑप्शन, कुछ भी आप कर सकते हो। सो अभी के लिए चॉइस है तो मैं इसे चॉइस ही रहने देता हूँ, चॉइस। सो वापस से अपने कोड पे आते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है, परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। एंड लास्ट हम लोग अपना प्ले गेम करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हमारा पूरा गेम का लॉजिक होगा। उसमें हम लोग पास कर देंगे अपना यूजर चॉइस। ये गेम फंक्शन लिखने से पहले यहाँ पे एज पर क्लिक इवेंट हम यूजर चॉइस यहाँ पे हमारा वो प्रिंट हो रहा है, जो कि हमने चॉइस डॉट गेट एट्रीब्यूट से आईडी यहाँ पे हमने रिट्रीव कर लिया और फिर हमें उसे पास कर दिया प्ले गेम में। सो उससे लिखने से पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं टू जनरेट रैंडम चॉइस फॉर द कंप्यूटर, क्योंकि हमें कंप्यूटर से भी हमें एक रैंडम चॉइस हमें जनरेट करवाना है अमंग्स 3। सो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट जनरेट कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर ओपोनेंट इज कंप्यूटर, दैट्स व्हाई कंप्यूटर चॉइस। सो ये भी फंक्शन बनाते हैं। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट ऑप्शंस।
कॉन्स्ट ऑप्शंस करके एक एरे बनाएंगे और उस एरे में हम लोग लिखेंगे रॉक पेपर सीजर। ये हम लोग वही एज इट इज लिख रहे हैं जैसा कि हमने यहाँ पे HTML में हमने आईडी में लिखा था रॉक पेपर एंड सीजर। सो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से एक रैंडम चॉइस जनरेट करवा रहे हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक एरे बनाया, उस एरे में हमने स्टोर किया है रॉक पेपर एंड सीजर। हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया विद नेम्स ऑप्शंस, जिसमें हमने स्टोर करा दिया रॉक पेपर एंड सीजर एज इट इज, जो कि हमने HTML में आईडी में जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था। अब हम लोग यहाँ पे एक रैंडम जनरेट करने वाले हैं, रैंडम चॉइस फॉर द कंप्यूटर। सो हम लोग यहाँ पे कुछ यूज करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड मैथ डॉट रैंडम। सो मैथ डॉट रैंडम एक मेथड है इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या करता है, बेसिकली जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 वेयर 0 इज इंक्लूसिव व्हाइल 1 इज एक्सक्लूसिव। मींस हमारा 1 जो इंक्लूड नहीं रहता है। सो ये क्या करेगा, यदि हम लोग मैथ डॉट रैंडम की हेल्प से जनरेट करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में एक नंबर ये जनरेट करेगा। बट अब हम लोग एक बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट रैंडम इंडेक्स। सो रैंडम इंडेक्स, और फिर क्या करते हैं, मैथ डॉट रैंडम करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 1, जिसमें कि हमारा 0 तो इंक्लूसिव रहेगा वाइल हमारा 1 इंक्लूसिव नहीं रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस हमारा जो रॉक है उससे जो इंडेक्स असाइन होगा वो है 0, पेपर को असाइन होगा 1 एंड सीजर को असाइन होगा 2। मींस हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि 0 1 2 के फॉर्म में हमें इसे जनरेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3। ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। पहले तो क्या था, 0 to 1 करता था, मींस वो हमारा 1 इंक्लूड नहीं होता था। अब इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मींस हमारा 3 इंक्लूड नहीं होगा। मींस ये 0 to 3 के बीच में नंबर तो जनरेट करेगा बट हमारा 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे कुछ यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड मैथ मैथ डॉट फ्लोर। ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, और इसके अंदर हम लोग हमारा मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, वो डेसिमल के बाद वो इग्नोर कर देगा। मींस 0 to 3, तो मींस ये 0 to 3 ये जनरेट तो कर रहा था बट हमारा वो 3 वो इंक्लूड नहीं था। मींस ये 0 से 2.999 समथिंग ये जनरेट कर रहा था। बट जैसे हमने मैथ डॉट फ्लोर इस पे अप्लाई कर दिया, वो क्या हुआ, पॉइंट के बाद वो सारा रिमूव हो गया। मींस हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया 0 1 एंड 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडेक्स ऑफ एन एरे। ये हमें जनरेट करना था। अब हम लोग इसे रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न ऑप्शंस, और यहाँ पे कर देंगे रैंडम इंडेक्स को पास कर देंगे। सी हमारा फंक्शन बन गया टू जनरेट अ रैंडम चॉइस फॉर द कंप्यूटर। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे टू हैंडल ड्रॉ गेम। जिस कंडीशन में हमारा ड्रॉ हो जाएगा गेम, उस कंडीशन के लिए हम लोग एक बनाएंगे कि फंक्शन कॉन्स्ट ड्रॉ गेम। सो कॉन्स्ट ड्रॉ गेम एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे इन ऑर्डर टू हैंडल द ड्रॉ सिचुएशन। सो उसके लिए कैरो फंक्शन बनाते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग गेम वाज ड्रॉ, गेम इज ड्रॉ, गेम इज ड्रॉ। और फिर हम लोग गेम ड्रॉ होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो भी हमारा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग, हमने ऊपर एक्सेस किया था अपने मैसेज को, यहाँ पे हमने एक्सेस किया था, तो यहाँ पे हमने एक्सेस किया था। तो हमारा हो गया मैसेज। क्या करेंगे, मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पे हम लोग अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गेम इज ड्रॉ प्ले अगेन, या फिर सेलेक्ट, या फिर प्ले अगेन ही कर देते हैं, प्ले अगेन। सो ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। और फिर हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी थोड़ा अपडेट कर देते हैं। सो मैसेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट स्टाइल डॉट, अरे यार, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करके यहाँ पे कर देते हैं हैशटैग 081B31।
सो ये हमारा फंक्शन बन गया ड्रॉ गेम के लिए। सो ड्रॉ गेम वाला हमारा फंक्शन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन जनरेट करने वाले हैं टू प्ले द गेम व्हेन द यूजर क्लिक्स अ चॉइस। मींस जब भी हमारा सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा था यूजिंग इवेंट लिस्नर, जब भी हमारा क्लिक इवेंट जब ये ट्रिगर होगा उसके बाद ये हमारा ये प्ले गेम वाला फंक्शन ये हमारा वर्क करेगा। सो हम लोग ये प्ले गेम वाले फंक्शन के लिए हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। सो जनरेट करते हैं ये फंक्शन। सो कॉन्स्ट प्ले गेम, कॉन्स्ट प्ले गेम, एंड इसमें पास कर देते हैं अपना यूजर चॉइस, यूजर चॉइस, और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट भी करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर चॉइस इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे यूजर चॉइस से हमारा यूजर चॉइस यहाँ पे हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर के लिए रैंडम चॉइस यहाँ पे जनरेट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, सो कॉन्स्ट कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस, और इसमें स्टोर कर देंगे अपना जो रैंडम चॉइस जो हमने जनरेट किया था, जनरेट कंप्यूटर चॉइस, ये यहाँ पे इसमें स्टोर कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग अपोनेंट चॉइस, या फिर अपोनेंट चॉइस या फिर आप कंप्यूटर चॉइस भी कर सकते हो। सो इसे कर दो कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पे अपने कॉम्प चॉइस को यहाँ पे प्रिंट करवा। सो ये हो गया। अब इस फंक्शन में हम लोग कुछ कंडीशन भी अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स यदि हमारा यूजर चॉइस यहाँ पे स्ट्रिक्टली इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे, अगर हमारा कंप्यूटर चॉइस के बराबर हो जाता है सो इस केस में हम लोग कॉल कर देंगे अपने ड्रॉ गेम। मीन्स हमारा यहाँ पे गेम ड्रॉ हो चुका है। एल्स यदि ड्रॉ नहीं होता है सो उस कंडीशन के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। सो उस कंडीशन के लिए हम लोग लिखेंगे एल्स। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर देते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर विन इज इक्वल टू ट्रू। हम लोग पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जो भी यूजर है वो यहाँ पे विन कर रहा है। सो हम लोग यूजर को एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनिशियली वो विन कर रहा है। अब हम लोग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू, अगर यूजर ने चॉइस किया है, सिलेक्ट किया है कि वो रॉक, सो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉक के केस में क्या है कि पेपर से तो लूज हो जाएगा, बट यदि ओपोनेंट में यदि सीजर है तो क्या होगा, वो विन हो जाएगा। ये एक कॉम्पैक्ट वे है लिखने का, यूजर विन इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू पेपर होता है, पेपर तो फॉल्स वरना ट्रू। मतलब इसका क्या हुआ, यदि यूजर का चॉइस आपका हो गया रॉक, ये कॉम्पैक्ट वे लिखने का, सो हमारा यूजर विन जो है वो फॉल्स होगा जब हमारा कंप्यूटर चॉइस पेपर हो, वरना वो ट्रू होगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ, बेसिकली मतलब ये होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट यूजर विन को ट्रू असाइन कर दिया। उसके बाद हमने यूजर चॉइस को, यदि यूजर का चॉइस रॉक है सो यूजर विन जो है वो यूजर विन हमारा फॉल्स हो जाएगा इन केस जब हमारा कंप्यूटर चॉइस पेपर हो जाएगा, वरना वो ट्रू होगा। सो ये इसका मतलब हुआ। अब हम लोग एल्स इफ कंडीशन लिखेंगे। सो एल्स इफ हमारा यूजर चॉइस पेपर होता है, सो इसके लिए भी कॉम्पैक्ट वे में लिखेंगे यूजर विन इज इक्वल टू, सो पेपर है तो उसके लिए अगर यदि हमारा कंप्यूटर चॉइस अगर हमारा सीजर हो जाता है, सीजर, सो उस कंडीशन में हम यूजर जो है वो हार जाएगा वरना जीत जाएगा। सो ये मतलब हो गया। एंड लास्ट हमारा हो गया एल्स यूजर विन इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस अब क्या बचा, पेपर हो गया, सीजर हो गया, मीन्स अब हमारा रॉक बचा है। सो यदि रॉक है और हमारा यूजर का चॉइस क्या बचा, रॉक पेपर सीजर, तो सीजर और रॉक में कौन जीतेगा, सीजर और रॉक में हमारा रॉक जीतेगा। मीन्स अगेन हमारा कंप्यूटर हमारा जीत रहा है, मीन्स यूजर हमारा यहाँ पे वापस से लूज कर रहा है, एल्स ट्रू हो जाएगा। सो ये हमारा है पूरा लॉजिक यहाँ पे। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे शो विनर करके, शो विनर
एंड इस फंक्शन में हम लोग पास कर देंगे यूजर विन, यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस, यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। सो यहाँ पे हमने पास कर दिया। मीन सो विनर में यदि हमारा यूजर विन, यदि हमारा फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स पास होगा। यदि हम फर्स्ट कंडीशन यदि हम यहाँ पे चूज करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा यूजर विन ट्रू है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रू जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा हमारा यूजर चॉइस हमारा रॉक है एंड कंप्यूटर चॉइस हमारा क्या पेपर है। सो क्या होगा रॉक और पेपर में हमारा पेपर जीत जाएगा, मतलब हमारा कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे जीत जाएगा। उसी तरह यदि हम सेकेंड वाले केस में लेते हैं एलसीफ वाले में, तो उसमें क्या है हमारा यूजर विन वापस से यहाँ पे हमारा ट्रू है और हमारा यूजर चॉइस हमारा पेपर है, कंप्यूटर चॉइस हमारा सीजर है। सो सीजर वापस यहाँ पे जीत जाएगा, मतलब हमारा यूजर विन यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा अपडेट होकर हमारा ये फॉल्स हो जाएगा यूजर, मतलब यूजर यहाँ पे हार रहा है। तो ये पूरा लॉजिक हमने यहाँ पे पास कर दिया है। विनर के लिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। सो कॉन्स्ट शो विनर और इसे पास कर देते हैं यूजर विन, यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। सो हमने यहाँ पे पास कर दिया है एंड अब इस फंक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यदि हमारा इफ यूजर विन है, इफ यूजर विन तो क्या हो जाएगा हमारे स्कोर को अपडेट कर दो। तो हमने सबसे ऊपर हमने यहाँ पे एक्सेस किया था अपने स्कोर को, दैट इज यूजर स्कोर, जो कि इनिशियलाइज हमने 0 से किया था, ये हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा विथ 1। सो हमारा यूजर स्कोर यहाँ पे हो जाएगा प्लस इफ यूजर विन। और फिर उसके साथ हमें यूजर स्कोर पैरा डॉट इनर टेक्स्ट को भी हमें चेंज करना है। सो वो हो जाएगा हमारा यूजर स्कोर के बराबर। सो हमने उसे असाइन कर दिया यूजर स्कोर। सो हमने अपडेट कर दिया अपने स्कोर को, जो कि पहले असाइन हुआ था 0, तो एज इट इज वो 0 था, बट वो हमारा अब हो गया है अपडेटेड स्कोर के बराबर। और हम यहाँ पे वापस से कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यू विन। हम अपने मैसेज को भी अपडेट कर सकते हैं। सो मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करेंगे, जिससे कि आपको बार बार वो कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल्स, वो एक मतलब एक तरीके से काफी सिंपल वे है लिखने का। सो स्ट्रिंग लिटरल्स का हम लोग यूज करेंगे। ये एक तरीके से बेस्ट है जिसमें कि आप अवॉइड करते हो लिखना कंसोल डॉट लॉग ये सब। सो स्ट्रिंग लिटरल्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे यू विन और फिर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन डॉलर साइन के साथ, और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे यूजर चॉइस, पास कर देंगे बीट्स, जो है यूजर चॉइस जो है हमारा बीट्स कर रहा है हमारे कंप्यूटर चॉइस को। सो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कंप्यूटर चॉइस। सो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देंगे। सो मैसेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर देते हैं। सो हमने कर दिया। ये तो हमारा हो गया इफ वाला कंडीशन। अब इसे में हम लोग लिखेंगे एल्स कंडीशन। एल्स वाले कंडीशन में क्या होगा यदि यूजर विन नहीं करता है। तो एल्स वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे कंप्यूटर स्कोर को अपडेट कर दो। कंप्यूटर स्कोर हमारा अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा विथ 1। और फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे कंप्यूटर स्कोर डॉट इनर टेक्स्ट को भी अपडेट कर देंगे और इसमें असाइन कर देंगे कंप्यूटर स्कोर। और फिर इसे भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग कंप्यूटर विन। और फिर वापस से यहाँ पे मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट करके अपने मैसेज को यहाँ पे अपडेट करेंगे मैसेज डॉट। इसे मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ इस वाले लाइन को और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको चेंज करना है वो बस आपको यहाँ पे ये करना है कि यूजर चॉइस की जगह कंप्यूटर चॉइस कर देना है और कंप्यूटर चॉइस की जगह आपको यूजर चॉइस कर देना है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर चॉइस और ये आपका हो गया यूजर चॉइस। और फिर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। सो मैसेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को आप कर दो रेड। सो ये यहाँ पे हमारा फाइनल फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था। सो फाइनली हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो टाइपिंग एनिमेशन इफेक्ट के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है और फिर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया अपने यूजर स्कोर कंप्यूटर स्कोर को भी 0। फिर हमने एक्सेस कर लिया अपने चॉइस को, अपने मैसेज को और अपने यूजर स्कोर कंप्यूटर स्कोर को इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी ऑल सिलेक्टर। फिर हमने फॉर ईच मेथड की हेल्प से
हमने क्या किया, हर एक चॉइस को यहाँ पे रिट्रीव किया है फ्रॉम द चॉइसेस, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्टर ऑल के हेल्प से हमने यहाँ पे एक्सेस किया था। फिर हमने इवेंट लिस्टनर यूज किया है विद इवेंट क्लिक, जिससे कि हमारा ये प्ले गेम फंक्शन यहाँ पे हमारा ट्रिगर हो रहा है। फिर हमने कुछ फंक्शन बनाया यहाँ पे, जो कि एक जनरेट कर रहा है रैंडम जनरेशन यहाँ पे कर रहा है फॉर कंप्यूटर। सो यहाँ पे हमने मैट डॉट रैंडम यहाँ पे यूज किया, जो कि 0 to 1 ये जनरेट करता है, जिसमें कि हमारा 1 जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव होता है। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि 0 to 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ये जनरेट कर रहा था, जिसमें कि हमने मैट डॉट फ्लोर लगाकर वो आफ्टर डेसिमल वो रिमूव कर दिया और फिर हमने रिटर्न कर दिया इसे। फिर हमने ड्रॉ गेम के लिए फंक्शन हमने लिखा है, फिर हमने प्ले गेम के लिए अपना पूरा फंक्शन लिखा, और फिर लास्ट में हमने सो विनर के लिए हमने फंक्शन लिखा। अब फाइनली इसे अपने क्रोम पे चेक करके देखते हैं। या सो ये हमारा फाइनल इंटरफेस है। सो जिससे कि आप देख पा रहे हो हमारा टाइपिंग एनिमेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ये हमारा ग्रेडियंट टेक्स्ट भी यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ये हमारा चॉइसेस है, जो कि आफ्टर हवर यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे कुछ हवर पे हमारा ये स्कोर वाले पे भी कुछ यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, और ये हमारा बॉक्स है जिसमें कि मैसेज यहाँ पे अपडेट होने वाला है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अपोनेंट विन, सो यू लूज, पेपर बीट्स योर रॉक। वापस से करते हैं, सो यू विन, योर पेपर बीट्स रॉक। वापस से करते हैं, सो गेम वाज ड्रॉन, स्कोर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो यदि पसंद आया, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।